Good morning, students. In the previous video, we have discussed that motion of a charged particle in a magnetic field. So today the next topic is of Biot-Savart law. Today we have to discuss the Biot-Savart law and its application. So first of all, why is the use of Biot-Savart law? Why there is a need of Biot-Savart law? So Biot-Savart law is used to find the strength of a magnetic field from a conductor to at any point. For example, if we take this is a current carrying conductor, clear? So this is a current carrying conductor, means it is carrying current I, clear? And at that point we have to find that this is point P. At that point we have to find the strength of magnetic field due to that conductor, clear? So we will take its small portion. We say that this is the small length dl of that conductor, clear? So we will join that conductor to the point P, clear? And it is at a distance r. It is at a distance r, clear? मीन्स ये कोई पॉइंट P है, इसके ऊपर हमने इस कंडक्टर की वजह से क्या निकालना है, स्ट्रेंथ निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, क्लियर? तो इसकी लेंथ कितनी है, dl है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है I, और इट मेक एन एंगल ऑफ थीटा है कि इसने इस कंडक्टर के ऊपर कितना एंगल बनाया, थीटा। तो हमने इसका स्मॉल एलिमेंट लिया है, तो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए जो फील्ड होगा, इस स्मॉल एलिमेंट के लिए जो फील्ड होगा वो किस किस पे डिपेंड करेगा? सो दैट फील्ड dB is directly proportional to, dB means strength of field at this point is dB because we take small portion dl. So dB is directly proportional to I, means current flowing through the conductor. dB is directly proportional to the dl length of that conductor which we consider, and dB is directly proportional to the sin theta angle between this length एंड दैट लेंथ, मीन्स इस डिस्टेंस r और इस लेंथ के बीच में जो एंगल बना है थीटा उसके साइन एंगल के साथ। दिस इज पॉइंट 3 एंड dB इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/r²। दिस योर फोर्थ, मीन्स जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट टू द पॉइंट। सो वी विल कंबाइन ऑल, सो दैट dB इज इक्वल टू k IDL sin theta divided by r², clear? IDL sin theta divided by r². So this k is known as constant of proportionality. So its value is given by mu naught upon में 4 pi. अब this is mu naught which we have discussed previously, that is permittivity. ठीक, क्लियर? ये आपकी क्या थी, परमिटिविटी थी, क्लियर? एब्सोल्यूट, mu naught is known as absolute परमिटिविटी, क्लियर? तो अब इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो दियर dB कम्स आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL sin थीटा डिवाइड बाय r². सो दिस इज नोन एज Biot-Savart law. सो इफ यू वांट टू राइट दैट Biot-Savart law in the form of vector form, so how will write it in vector form? In the vector form, what we have to do, we have dB is equal to mu naught upon में 4 pi IDL sin theta divided by r². so simply you multiply that with a unit vector, कि जब हम किसी भी वेक्टर, किसी भी क्वांटिटी को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, इट रिमेन सेम. सो वी नो दैट द यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड. सो व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर हियर, सो dB कम्स आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL sin थीटा इंटू में r वेक्टर डिवाइड बाय दिस r² एंड r अपॉन r में तो दिस बिकम r³, क्लियर? एंड दिस इज योर Biot-Savart law in the vector form. So we have discussed Biot-Savart law, and also you can find the unit of this, and its whole value comes out to be 10 raised to power. If you want to find the unit of this, so from this you can find the unit. We have B is equal to, or dB is equal to mu naught upon में 4 pi IDL sin theta upon में r², clear? So we'll take theta as 90 degree, so ये आपका 90 आ गया, क्लियर? तो अगर ये 90 है तो ये 1 बन गया आपका. अब हमने क्या करना है, इन सबको उठा के उधर लेके जाना है. सो dB इंटू में r² डिवाइड बाय
I into में dl, this 4 pi is constant, so db is the magnetic field strength, so it is measured in Tesla. This is r square, so it is meter square divided by length is also measured in meter, so here comes out to be meter, and current is in ampere. So after solving it, while we cut this with this, so its unit comes out to be Tesla meter per ampere is the unit of mu naught. Clear? So next we will discuss the application of Biot-Savart law. So in the next part we will discuss the application of Biot-Savart law. So this is your Biot-Savart law in simple form, and this is your Biot-Savart law in the vector form. In here is dl and r is the cross product of this dl and r vector. So this is the direction of r vector. So if you want to find the value or find the numerical value of this, so mu naught upon 4 pi as a whole is equal to 10 raised to power minus 7. We have find its unit. Its unit is Tesla meter per ampere. So this is the value of mu naught upon 4 pi. So if in any numerical, if you found here mu naught, so every time you will multiply it by 4 pi by, means you have to divide that mu naught by 4 pi. So for that you can put its direct values 10 raised to power minus 7 into 4 pi. Clear? So this is your Biot-Savart law, and this is your Biot-Savart law in the vector form. Clear? So now in the next we will discuss the application of Biot-Savart law. So now we will discuss the application of Biot-Savart law. The first application is used to find the magnetic field due to infinite long straight current carrying conductor. So first we will draw the diagram. Then after drawing the diagram, we will understood what we have to do. So this is your straight current carrying wire carrying current I. So this wire current carrying I. Clear? This is a point P for where we have to find the value of magnetic field due to that current carrying wire. Clear? So for that point P we have to find the value. So now we will meet, or we will join that point P to this wire. Here this wire we have to join. Clear? So this is your wire. Clear? At that point we have to find the magnetic field strength. So again we will take a small element. We will take a small element here dl. This is a small element dl. Clear? And we will join that to this point P. Clear? And that angle is phi, means the angle made by the element is phi to that point. And this point is at a distance x, means this point P perpendicularly is at a distance from this wire 90 degree here, and that distance is r. Clear? And this angle made here is theta. Clear? So first we will write here Biot-Savart law. So here we are using Biot-Savart law. So we know that from the Biot-Savart law, the field for that small element dl can be written as dB is equal to mu naught upon में 4 pi I dl sin theta. अब यहाँ पे जो थीटा है कितना है फाई, सो हियर विल राइट साइन फाई डिवाइड बाय आर स्क्वायर. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. अगर हम देखें बेटा कि इस वायर का स्मॉल लेंथ अपन ये लिया, अगर मैं इसको यहाँ पे कहीं मिलाता हूं तो ये एंगल आपका कुछ और होगा. तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि आपकी जो ये पूरी लेंथ है इसके लिए आप ऐसे चलोगे. अगर हमने इसको यहाँ मिला दिया यहाँ पे, तो आप हम ऐसे घूम रहे हैं. क्लियर? सो मैं क्या करूंगा, स्मॉल के लिए निकाल लूंगा और इसको फिर इंटीग्रेट कर दूंगा. तो अगर हम कह देते हैं कि ये जो पूरा एंगल है दैट इज थीटा 1 और जो ऊपर वाला एंगल है दैट इज थीटा 2. क्लियर? ये आपका एंगल थीटा 1 है बड़े वाला, और ये एंगल आपका थीटा 2 है. तो हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं थीटा 1 टू थीटा 2 जा रहे हैं. और ये अगर बिल्कुल इसके मिड में है, अगर ये पॉइंट O है मान लो आपका, और इस DL का जो डिस्टेंस है सेंटर से इसके ये L है. क्लियर? सो वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस थीटा 1 टू थीटा 2. क्यों? अगर ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा तो ये एंगल थीटा
1 आपका माइनस का है और थीटा 2 किसका प्लस का है। तो हम आगे देखेंगे। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हियर, dl की वैल्यू निकालनी है हमने, साइन फाई की वैल्यू निकालनी है और इस r की वैल्यू निकालनी है। इन सब की वैल्यू निकाल के फिर इसको हम इस पूरे फंक्शन को हमने थीटा की फॉर्म में चेंज करना है, बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएशन है वो थीटा 1 से थीटा 2 है, मींस वी हैव टू वेरी इन दिस रेंज। क्लियर। सो हम सिंपली क्या करेंगे, नाम दे देते हैं। अगर ये O है, ये अगर आपका A है और ये आपका P है, so we have to find the value of sin phi, we have to find the value of dl and we have to find the value of r. So how you will find? So first of all in triangle, ये ट्रायंगल आपकी आ गई OAP, इन ट्रायंगल OAP। सो अगर हम फाई की बात करते हैं, अगर ये आपका फाई है, तो अगर मैं यहाँ से साइन फाई निकालता हूं तो साइन फाई आपका क्या आएगा, सिंपल है, ये आपका परपेंडिकुलर है तो ये आपका फाई एंगल है तो ये बेस बन गया। क्लियर। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। क्लियर। तो परपेंडिकुलर के यहाँ पे x, हाइपोटेनस आपका क्या r, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई x/r। क्लियर। सिमिलरली आप इसी ट्रायंगल से कोस थीटा निकालो, तो जब हम कोस थीटा निकालेंगे तो अब आपका ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, और इसका मतलब ये जो बन गया बेस। सो अब आपका जो वैल्यू है आपकी कोस थीटा की वो भी क्या आएगी, x/r आएगी। क्लियर। So from here it is clear that कि sin phi is equal to cos theta. Clear. In sin phi we will write cos theta. Also from here you can find the value of r. So your r is equal to x by cos theta. तो हमने दो वैल्यू निकाल ली अपनी। हम sin phi की जगह cos theta लिख सकते हैं और r की जगह x by cos theta लिख सकते हैं। तो अपना रहेगा dl, सिर्फ अपना क्या रहेगा आपका dl। क्लियर। तो अगर आप इस L को निकाल लेते हो और इस L को अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हो, क्लियर, इफ यू वांट द L, और अगर L को निकाल के उसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, क्लियर, तो आपका वो क्या आ जाएगा, dl आ जाएगा। तो देखो पहले L निकालते हैं यहां से। तो ये आपका थीटा है, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपकी जो पूरी ट्रायंगल है ये आपकी आ गई एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपकी अगर ये है, इसमें से आप निकालो टेन थीटा। तो अगर मैं ऐसे टेन थीटा निकालता हूं तो टेन थीटा होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अगर मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं बेस अपॉन हाइपोटेनियस से, कि अगर ये आपका थीटा है, क्लियर, और ये आपका हो गया बेस, क्लियर, और ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, तो आपका जो होता है PBP अपॉन में HHB, मींस जो आपका टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, अगर ये थीटा है, ये आपका बेस है, मतलब OP इज अ बेस, जो आपका OP बेस है, और OA आपका क्या है, परपेंडिकुलर। तो टेन थीटा आपका यहां से आएगा, दैट इज L/x। क्लियर। तो यहां से मैं अब L निकालूंगा, तो जो आपका L होगा वो आएगा x टेन थीटा। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था dl। तो इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो dl कम्स आउट टू बी x एज इट इज, क्योंकि x आपकी वैल्यू जो है कांस्टेंट है, वो वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो रही है। अब जो टेन थीटा है बेटा, उसकी जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा, दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। फिर इस थीटा की क्या बन गई आपकी d थीटा। तो मेन पॉइंट बेटा ये था कि हमने इस पूरे डेरिवेशन को थीटा की फॉर्म में चेंज किया। क्यों किया थीटा की फॉर्म में, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो वेरिएशन है वो थीटा में यहां से यहाँ पे। क्लियर। कि अगर मैं ये स्मॉल लिया था तो इसके लिए था ये, अगर मैं पूरा निकालता हूं, ये आपका एंगल कितना है थीटा 1, ये एंगल क्या थीटा 2, ये इसकी पूरी लेंथ है मान लो। तो इसके लिए अगर हम निकालें तो वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। सो आफ्टर दैट वी विल पुट ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1। इस सभी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो अब जब हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, बारी बारी इसको पुट करते हैं, बाद में इसको इरेज कर देंगे, पहले यहां पे पुट कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर dB एज इट इज आ गया आपका dB, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज आया। क्लियर। आई आपका एज इट इज है। इन प्लेस ऑफ dl की जगह हम क्या लिखेंगे, x सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा। तो यहां पे आ गया x सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा। क्लियर। तो dl पुट कर दिया। आफ्टर दैट साइन फाई, तो साइन फाई किसके इक्वल है, कोस थीटा के इक्वल है। तो यहां पे लिख दिया मैंने कोस थीटा। क्लियर। उसके बाद डिवाइड बाय, नीचे आपका क्या r, तो हमने यहाँ पे r की वैल्यू निकाल ली थी, तो ये आपकी r की वैल्यू थी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, r की वैल्यू आपकी है x बाय कोस थीटा। तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम x बाय कोस थीटा
और इस सारे का स्केयर। तो हम इसको अब आगे यहां से हटा देते हैं। आप देखो आगे क्या करना है। ये आपकी लेंथ एल थी, तो जब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो आपका जो डीबी होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एज इट इज आई इंटू में एक्स सीकेंड स्केयर थीटा इंटू में कोस थीटा इंटू में डी थीटा। मैं इस थीटा को पीछे लेके चला गया और कोस को आगे लिया नीचे। जब हम इसको देखते हैं यहां पे बनेगा एक्स स्केयर, आपका आ गया एक्स स्केयर, क्लियर। और ये नीचे है कोस थीटा, तो कोस थीटा का स्केयर, तो ये आपका जो कोस थीटा का स्केयर है इसको अभी मैं नीचे लिख लेता हूं यहां पे कोस स्केयर थीटा, क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई, आपका आई एज इट इज है एक्स सीकेंट स्केयर थीटा इंटू में कोस थीटा इंटू में, अब जब मैं इस कोस स्केयर को ऊपर लेके जाऊंगा तो ऊपर बन जाएगा बेटा कोस क्यूब थीटा इंटू में डी थीटा डिवाइड बाय एक्स स्केयर। और आपको पता है बेटा कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा होता है। तो जब हम देखेंगे तो ये सीकेंट स्केयर थीटा से आपका एक कोस कट जाएगा, तो आपका एट द एंड जो डीबी आया वो आ गया आपका म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई इंटू में इस x के साथ आपका x क्या हो गया, कैंसिल हो गया एक x, तो यहां पे बचा आपका कोस थीटा इंटू में डी थीटा, कोस थीटा इंटू में डी थीटा डिवाइड बाई एक्स, क्लियर। तो अब हम दोनों साइड क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करके यहां पे बन गया b। जब इसको इंटीग्रेट करें तो हमने आपको कहा था कि v विल, तो ये एंगल हमने थीटा लिया था, तो ये तो इसके लिए था बेटा। तो हम कहां चल रहे हैं, हम अगर इस पूरी लेंथ को लेना चाहते हैं या कुछ भी हो तो ये आपका पूरा एंगल ये होगा, तो यहाँ पे वेरिएशन यहां से यहां तक है। अब आपका जो ये हाफ है ये नीचे वाला है, ये हाफ कौन सा ऊपर वाला है। अब यहाँ पे तो बेटा 90 है, क्लियर, ये भी आपका 90 है, लेकिन हमें इस एंगल के बारे में नहीं पता कि एंगल कितना होगा। तो हमने इसको एंगल मतलब थीटा 1 नीचे वाले को थीटा 2, तो वी विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम माइनस थीटा 1 टू प्लस थीटा 1। अब माइनस क्यों लिया, क्योंकि बेटा ये आगे नीचे आपका, अगर ये आपका मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन नीचे आ गया माइनस, तो वी विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम माइनस थीटा 1 टू थीटा 2, क्लियर। तो अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल सी दैट कि हाउ इट चेंज व्हेन इट विल इंटीग्रेट। हम आगे देखते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो b इज इक्वल टू आपकी जो ये सारी क्वांटिटी है म्यू नोट 4 पाई आई x, ये सारी कांस्टेंट है, तो म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डिवाइड बाय x इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 दैट इज माइनस कोस थीटा इंटू में डी थीटा। अब जो कोस थीटा बेटा इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा, तो अब यहां पे हम पुट कर देंगे ये इंटीग्रेशन आपकी, अब यहां पे आ जाएगी साइन थीटा, और कहां से कहां तक, थीटा 1 टू थीटा 2 किसकी, माइनस की। अब जब हम यहां पे पुट करेंगे यहां बन जाएगा म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई बाय एक्स, तो जब यहां पुट करेंगे यहां बनेगा साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 किस चीज के, माइनस के। तो जब ये माइनस बाहर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस, तो अब अपने पास जो आ गया वो आ गया साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो ये आपका b आ गया। अगर हम ये कह देते हैं कि अगर ये वायर बेटा इनफाइनाइट लेंथ की है तो इसके एंड पॉइंट बहुत दूर होंगे, मींस इसका एंड पॉइंट हमें पता नहीं कहां पे है, इसका एंड पॉइंट हमें पता नहीं कहां पे है। अब जब यहाँ पे हम इसका एंगल की बात करेंगे, जैसे इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है तो एंगल बढ़ता जा रहा है, तो अगर ये पॉइंट आपका इनफाइनाइट पे जाके तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये आपका एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इधर से ऐसे, क्लियर। क्यों, क्योंकि बेटा जो ये अगर लेंथ है ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी लेंथ है। अब हमने इतनी लेंथ ली थी तो यहाँ पे एंगल थीटा 1 था, थीटा 2 था, यहाँ पे थीटा 1 था। अगर इस लेंथ को हम बढ़ाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपके ये एंगल है और जो आपका ये एंगल है ये कहीं ना कहीं 90 हो जाएगा। तो अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट है तो आपका थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अगर इसको हम 90 पुट कर देते हैं, साइन थीटा 90 ये 90, तो आपका ये बन जाएगा बेटा साइन 91 साइन 91। तो अब आपका जो यहाँ पे b बनेगा वो बनेगा आपका म्यू नोट अपॉन में 4 पाई, तो ये भी 1 आया, ये भी 1 आया, तो 1 प्लस 1 2, तो ये बन गया आपका म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई एक्स, क्लियर। तो ये x है आपका, ये डिस्टेंस है इस पॉइंट p का इससे परपेंडिकुलरली। तो ये आपका डेरिवेशन है, इसको हमने आगे नेक्स्ट बार बार यूज कर रहे हैं, कभी भी इसको आपने ऐसे नहीं कट करना। फिर रीजन बता देता हूं, आप लिख दोगे यहाँ पे म्यू नोट, या बुक में लिखा होगा म्यू नोट अपॉन में 2 पाई आई बाई एक्स, जैसे लिखा होगा।
सो बेटा जब इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, हमें पता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई जो है वो आपका 10 की पावर -7। तो अब याद रखना है कि किसी भी इनफाइनाइट वायर के लिए जब भी आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो बी होगा आपका, दैट इज म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I/r। आर मतलब उसका डिस्टेंस, अगर ये एक्स लिया था हमने, अगर इसको सॉरी जो आर है वो डिस्टेंस है उस वायर से उस पॉइंट का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट वायर। तो इसको अब आपने x मान रखा है तो यहाँ पे x लिखेंगे, नहीं तो r लिखेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि हम फिर से फील्ड निकाल लेंगे, लेकिन अब फील्ड निकालेंगे कि जब इस वायर को हम वी विल बेंड इन द फॉर्म ऑफ रिंग और सर्कुलर की फॉर्म में बेंड कर देंगे, तब आपका क्या होगा। पहले बता देता हूँ क्या होगा। ये सारा आपका वही सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे आपका जो आपका 2I के साथ यहाँ पे 2πi आ जाएगा। मीन्स हमने जो नेक्स्ट डेरिवेशन करना है वो करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लूप एट अ पॉइंट डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। उसके लिए हम निकालेंगे, सारा डेरिवेशन ऐसे ही होगा। आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आपका 2I था, वहाँ पे 2π आ जाएगा। अब इसको हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ करंट कैरिंग लूप। सो पहले डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या बेटा, ये एक लूप है विच इज कैरिंग अ करंट I, क्लियर, एंड दिस इज अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर एंड हैविंग रेडियस r ऑफ दैट लूप। सो वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट P के ऊपर। सो हमने इसका स्मॉल एलिमेंट dl ले लिया, इसका स्मॉल एलिमेंट dl ले लिया, क्लियर। इस dl को हमने इससे मिलाया इस पॉइंट P से, तो इस dl का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से r है, क्लियर। तो जब आप यहाँ पहुंचे तो बेटा दिस dl, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ एंड दैट एलिमेंट मेक एन एंगल थीटा एट P एंड एंगल फाई एट द लूप। सो जो आपका dB इज इक्वल टू होगा दैट इज म्यू नॉट अपॉन में 4πi dl साइन फाई डिवाइड बाय दिस r स्क्वायर फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ, क्लियर। लेकिन जब हम यहाँ पे पहुंचे, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट dB एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ dB आल्सो। ये dB की डायरेक्शन है, किसके लिए, इसके लिए dl के लिए, और इस dB की डायरेक्शन है इस dl के लिए। और जो ये एंगल बेटा थीटा है, तो अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं तो ये बनता है बेटा पूरा एंगल 90, मीन्स दिस फुल एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये एंगल आपका क्या थीटा है, तो जो ये आपका एंगल होगा ये दिस इज 90 माइनस थीटा, क्लियर। और जब हम यहाँ पे अपना रूल लगाते हैं तो इट इज आल्सो परपेंडिकुलर। तो जो ये dB है ये आपका इस लूप के क्या है, परपेंडिकुलर है, क्लियर। तो इस लूप से जो पॉइंट मिला है तो ये एंगल भी कितना है, 90 है। तो अगर ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा है और ये पूरा एंगल कितना है, 90 है, तो बेटा ये एंगल क्या बन गया, आपका थीटा बन गया। सिमिलरली जो ये एंगल ये भी आपका बन गया थीटा। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये एंगल थीटा है, ये पूरा 90, तो ये बच गया 90 माइनस थीटा। फिर ये पूरा क्या है 90, अगर ये आपका क्या है 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया थीटा। अब हमने इसको रिजोल्व करना है, तो जो ये वाला कंपोनेंट है बेटा ये बन जाएगा आपका dB कोस थीटा, क्लियर। और ये बनेगा आपका dB कोस थीटा, मींस dB कोस थीटा ने dB कोस थीटा को तो बैलेंस कर दिया। अब जो यहाँ पे आया बेटा, जो इस लूप के लिए वो आपका आ गया dB साइन थीटा, और फिर दूसरे के लिए भी क्या गया dB साइन थीटा। अब बेटा यहाँ पे समझना अपन ने कि जो टोटल आपका B है, जो आपका टोटल क्या है B है, वो समेशन है किसका, dB साइन थीटा, क्लियर। ये किसका समेशन है, dB साइन थीटा का समेशन है। कैसे हुआ dB साइन थीटा का समेशन, अब हम समझ सकते हैं। ये मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, अगर मैं एक और एलिमेंट लूंगा वो भी यहाँ पे आएगा, बिकॉज जो आपकी एक सर्कुलर कॉइल है इट इज मेड अप ऑफ मेनी एलिमेंट्स, स्मॉल एलिमेंट्स। अब जब वो सारे स्मॉल एलिमेंट अगर एक dB साइन थीटा देता है तो दूसरा भी dB साइन थीटा, तो इस तरह सारे के सारे जो आपके होंगे वो आपके कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, dB साइन थीटा। तो आपका जो टोटल B है दैट इज द समेशन ऑफ dB साइन थीटा। इसके बाद हम इसके यहाँ पे dB की वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसको हम सोल्व करेंगे एंड वी विल फाइंड द वैल्यू फॉर द लूप। तो इसको हम देखते हैं आगे, देखो आगे क्या करना है इसके बाद। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4πi dl sin phi by r स्क्वायर, क्लियर। तो हम पहले क्या देते हैं, फाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू
90 डिग्री की जो आपको फाई एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली 90 के इक्वल है। एक और बात बेटा जी, जो आपकी नई बुक है उनके अंदर थोड़ा डिफरेंट मेथड से दिया हुआ है, आपने इस मेथड से करना है, ये ईजी है और ईजिली आप इसको समझ सकते हो। जो नई बुक में है उसमें थोड़ा चेंज किया, वहाँ पे आपका समेशन डी बी कोस फाई की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्लियर, लेकिन आपने साइन की फॉर्म में इसको आप याद रख सकते हो, क्लियर। और इसमें आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो कि जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला किया था वहाँ पे कोस से करना है, और जो मैग्नेटिक फील्ड वाला करना है वो साइन से करना है, और आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होगे कि साइन कहाँ पे कोस कहाँ पे और कब दोनों में कोस आएगा, लेकिन अब आप डिफरेंशिएट कर लोगे, एक में कोस और एक में क्या साइन। तो जब हम यहाँ पुट करेंगे तो आपका जो डी बी आ गया, दैट डी बी कम्स आउट टू बी म्यू नोट आई डी एल बाई 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। अब जो अपना टोटल बी था वो था बेटा समेशन डी बी साइन थीटा, क्लियर, ये था अपना डी बी समेशन साइन थीटा था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस समेशन को अगर हम करते हैं इंटीग्रेट में चेंज कर दिया और डी बी को वैल्यू पुट कर दी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर इनटू में साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पीछे डायग्राम देखा था उस डायग्राम से हम क्या करेंगे, हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ पे ये ऐसे था वो, क्लियर, ये आपका एंगल यहाँ पे थीटा था, क्लियर, ये एक्स था, ये आर था और ये स्मॉल आर था, और ये 90 डिग्री का देखिए अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री था ये आपका अप्रोक्सीमेटली ये फाई है, और फाई आपका अप्रोक्सीमेशन में हम 90 कह सकते हैं इसको, क्लियर। तो ये आर है, ये एक्स है, क्लियर। तो अब यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालना चाहता हूँ, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या आपका आर है और हाइपोटेनस आपका क्या है, स्मॉल आर है। तो जो यहाँ से वैल्यू आएगी इसकी आ जाएगी आपकी वैल्यू कैपिटल आर डिवाइड बाय स्मॉल आर, और नीचे आपका हो गया ये पूरा आर क्यूब। तो अब हम यहाँ पे पहुंच गए, इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल आर डिवाइड बाय आर क्यूब, क्लियर। अब इसके बाद अगर हम इस आर क्यूब की वैल्यू निकालना चाहते हैं, दिस आर क्यूब, बेटा ये आर है और ये एक्स है, तो आपका जो आर होगा वो होगा अंडर रूट आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आर की, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सारे की पावर, अब यहाँ पे अंडर रूट था और यहाँ पे आर का क्यूब था, तो ये पूरी पावर बन जाएगी 3/2, क्लियर। अब इसके बाद जो आपका आर है वो भी फिक्स है, ये एक्स भी आपका फिक्स है, सिर्फ लेंथ ही है जो चेंज हो रही है। तो आपका जो टोटल बी होगा उसके अंदर आपका यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पे आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब जो डी एल की इंटीग्रेशन होगी वो एल होगी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एल, और जो एल है बेटा दिस इज द लेंथ ऑफ द आर। तो जो लेंथ है पूरी इस सर्कमफ्रेंस है, तो सर्कमफ्रेंस किसके दैट इज 2 पाई आर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर इज रेडियस, तो कैपिटल आर, क्लियर। और यहाँ से आपका वैल्यू बनेगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई दिस आर एंड दैट आर, आप स्क्वायर कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो इसको अगर हम रीअरेंज करना चाहते हैं, अब हम कह देते हैं इफ यू वांट टू फाइंड द सेंटर, ये अगर हम सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं किसी लूप का, तो अगर सेंटर के ऊपर एक्स आपका क्या होगा, 0 हो गया, सेंटर के ऊपर अगर एक्स 0 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 होगी, क्लियर। ये 3/2 था, तो ये 2 के साथ आपका कैंसिल होगा, तो आपका बन जाता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में 2 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब। तो इस आर स्क्वायर के साथ आपका आर क्यूब क्या हो गया, कैंसिल, तो आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे b कम्स आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, तो जो हमने पिछले केस में डिस्कस किया था। अगर स्ट्रेट वायर है तो आपका b होगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई बाय आर वो डिस्टेंस। अगर आपकी वो सर्कुलर लूप है तो म्यू अपॉन में 4 पाई 2 पाई आई डिवाइड बाय आर, क्लियर। एक और पॉइंट इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, वो पॉइंट क्या आपका कि अब हम कह देते हैं कि जो आपका x है दैट इज ग्रेटर देन r, मींस इसकी रेडियस के कंपैरेटिवली
आपका x बहुत दूर है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, r को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आपका जो b होगा दैट इज म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। ठीक है, तो अगर हम x को नेग्लेक्ट करना चाहते हैं, इससे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, ये दिस पाई आर स्क्वायर, इनको हम एरिया लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2ia डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, तो ये नेग्लेक्ट हो गया, तो यहाँ बचा एक्स क्यूब। तो ये आपका वो केस है जब आपका पॉइंट बहुत दूर है। अब यहाँ पे हमने पॉइंट्स समझना है क्या है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, तो यहाँ से बेटा क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो x के साथ वेरिएशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर, तो आपकी जो वेरिएशन है x के साथ किसकी, b की, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि जैसे जैसे दूर जाएंगे आपका b है वो कम होता जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो b है वो कब मैक्सिमम है, अगर यहाँ पे बात देखें बेटा, यहाँ पे हम देखते हैं आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पूरी टर्म से हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे x की कोई वैल्यू पुट ना करें, अगर x यहाँ पे 0 होगा तो इसका मतलब हम छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब जब x क्या होगा, 0 होगा, तब आपका b क्या होगा, मैक्सिमम। तो x मान लो यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे आपका वैल्यू है कुछ ना कुछ, तो ये आपका जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा। क्लियर, और इधर भी आप ये नेगेटिव में ले सकते हो आप ऐसे। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ b विद x, की जो x की वैल्यू जब 0 होगी तब आपका फील्ड मैक्सिमम, मींस जो आपका फील्ड है वो सेंटर पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। एक टॉपिक आएगा नेक्स्ट कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो बेटा सेंटर के लिए आपने अलग से नहीं करना है, सेंटर के लिए जस्ट आपने क्या करना है, इसी को आप करोगे डेरिवेशन को, और इसी डेरिवेशन में आप x की वैल्यू को 0 पुट कर दोगे और वो आपका आ जाएगा सेंटर के लिए। तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। एक आपका टॉपिक है छोटा सा कि अगर आपकी वायर इन द फॉर्म आर्क है, तब आप लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बायस आप लिखेंगे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में साइन फाई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो हम कहते हैं बेटा जो आई और डी एल है दैट आर परपेंडिकुलर, तो इस फाई को हम पुट कर देंगे 90 डिग्री। तो आपका जो dB आ गया वो आपका आ गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो मैंने इस पूरी के लिए निकालना है, तो मैंने इसका एक स्मॉल एलिमेंट dl ले लिया, इसे एंगल यहाँ पे d थीटा बनाया है और उसकी रेडियस r है। और अगर हम निकाले तो हम यहाँ से चले तो जो आपका थीटा यहाँ पे 0 था, यहाँ पे जाके क्या होगा, थीटा हो गया। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ दोनों साइड, कहाँ से लेके 0 से लेके थीटा तक, और जो dl है वहाँ लिखे थीटा इज इक्वल टू l बाई आर। जो थीटा है वो आपका क्या है, l बाई आर है। तो इन द प्लेस ऑफ थीटा दिस इज d थीटा, इन द प्लेस ऑफ l इज dl डिवाइड बाई r। सो यहाँ से जब हम dl की वैल्यू निकालेंगे तो dl कम्स आउट टू बी r इंटू में d थीटा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे उसको हम, तो जो आपका b होगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू थीटा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इन प्लेस ऑफ i f इन प्लेस ऑफ dl वी विल राइट r d थीटा। तो हियर कम्स आउट r d थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। सो ये r के साथ आपका ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपकी जो वैल्यू आई अब यहाँ पे b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 0 टू थीटा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी थीटा डिवाइड बाय आर। क्लियर, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी थीटा। तो आपका जो b होगा दैट इज म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई थीटा बाय आर। सो दिस इज द b ऑफ अ लूप। क्लियर, तो ये आपका एक b है, किसी भी अगर हम क्या लेते हैं, कोई भी एक आर्क लेते हैं इन प्लेस ऑफ सर्कुलर लूप। तो ये आपका टॉपिक था।